بفری لہروں نے ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا کا نقشہ ہی بدل ڈالا، 100 سے زائد دیہات ڈوب گئے، پانی شہر کے بند تک پہنچ گیا۔ حادثے سے پہلے میں اپنے کمرے میں تھا، موبائل دیکھ رہا تھا۔ میری ماں اتنی ڈوبی ہوئی تھی اور میں خود نکلا ہوا۔ میرا پورا گھر گیا ہے، ماما اور بابا باہر آ گئے تھے اور 4 بہنیں وہ اندر تھے تو ڈیتھ ہو گئے، شہید ہو گئے۔ کمرے میں اوڑ دیا پنجا کنالا پورا چل ویکھ لگا پتی۔ مرکزی پنجاب میں چناب کے بالکل برابر اندرون میں سفر کرتے ہوئے یہ بارش کا سما آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 6 بکریاں بدیاں حکومت کیا کرنے دیتی ہے؟ سارے بچے ضرور دیکھیں کتنا ہے حکومت کیا کرنے دیتی ہے؟ ہم تو جہاں پر بھی جاتے ہیں لوگ ہمیں یہی کہانیاں سنواتے ہیں۔ اس پروگرام کے اندر سوات کی وادیوں میں سے لے کر منڈی، بہاؤالدین اور مرکزی پنجاب کے میدانوں تک کی کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں ایک ہی بپتا سنائی دیتی ہے، وہ بپتا ہے لوگوں کے مسائل کی۔ مسئلہ صرف معیشت کا نہیں ہے، فصلوں کا نہیں ہے، گھروں کا نہیں ہے، جانوں کا نہیں ہے، مسئلہ اس تمام زندگی کے نظام کا ہے جو سیلاب نے درم برم کر دیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے اضلاع کو ملا کے 160 کے قریب اضلاع بنتے ہیں۔ اگر ان میں سے 20 کے اندر یا 25 کے اندر سیلاب آ گیا تو کیا عذاب آ گیا۔ پاکستان باقی تمام کا تمام الحمدللہ انٹیکٹ ہے اور ہمیں زیادہ اس کے اوپر ہڑبونگ مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو ہم اندرون پنجاب، اندرون خیبر پختونخوا پہاڑوں سے اور میدانوں سے گزرتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو میں آپ کو یہ انڈیکیٹ کر سکتا ہوں کہ یہ عذاب نہیں ہے، یہ عذاب مسلسل ہے۔ ہم نے اس پروگرام کے اندر آپ کو یہ بتانا ہے کہ لوگ اس تمام مدعے سے، اس سیلاب کے طوفان سے، اس عذاب سے کس طرح متاثر ہوئے ہیں۔ جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں یہ دوابے کا علاقہ ہے، اس کے ایک طرف چناب بہتا ہے، وہ چناب جو بفرا اور گاؤں کے گاؤں الٹا دیے اس نے، دوسری طرف دریائے جہلم ہے جس سے نقصان نہیں ہوا، لیکن چونکہ دوابہ ہے تو دونوں طرف سے اس کو پانی آتا ہے۔ اس کے اگر آپ اطراف کے معاملات دیکھیں تو جو چھوٹے چھوٹے سلسلے ہیں، جو ڈرینیج ہیں، وہاں سے پانی ڈرین ہو کے چناب کی طرف جاتا ہے، لیکن چناب کے اندر خود اتنا پانی تھا کہ اس ڈرین نے اس پانی کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور پانی کو واپس پلٹا دیا۔ کیا یہاں پر بند بننے چاہیے تھے؟ 16 کے قریب یہاں پر گاؤں ہیں جو بند نہ ہونے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے۔ تخمینے آپ نے کیسے لگانے ہیں؟ میں نے ابھی تک جو حکومت پنجاب کی اور مرکز کی اسسمنٹس دیکھی ہیں اس کے اندر کہیں پر تخمینوں کا آغاز نہیں ہوا، لیکن میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ لوگوں نے تخمینے لگانے شروع کر دیے ہیں اور ان کے پاس بڑے واضح انداز سے نمبرز موجود ہیں کہ ان کا نقصان کتنا ہوا۔ اب حکومت وقت یہ نقصان کیسے پورا کرے گی، کتنا پورا کرے گی، کب تک پورا کرے گی۔ صرف معاملہ کھڑی ہوئی فصلوں کی تباہی نہیں ہے۔ جہاں پر میں بیٹھا ہوا یہاں پر بہت کلیدی فصلیں ہیں۔ یہ 400 ساڑھے 400 سال پرانا ایک تجارتی اور زرعی مرکز ہے۔ یہاں پر تمباکو کی فصل ہوتی ہے، گندم ہوتی ہے، چاول ہوتا ہے، بانس ہوتا ہے، اس کے ساتھ زرعی اجناس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریز یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں پر لوگ جو ہیں کھیتی باڑی کے علاوہ اور کوئی کاروبار نہیں کرتے، تو مرکز کے اندر سیلاب نے ہٹ کیا ہے۔ پچھلے سیلابوں سے جب موازنہ کیا جاتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ پچھلے سیلابوں کے اندر پنجاب ویسے متاثر نہیں ہوا، اور اگر پنجاب متاثر ہوا تو پنجاب کا مرکز متاثر نہیں ہوا۔ اس مرتبہ پنجاب کے مرکز کے اندر آپ کو دھچکا لگتا وہ نظر آیا۔ اگر آپ 2022 کے سیلابوں کا تذکرہ کریں تو مجموعی طور پر پاکستان کے اندر
15.8 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ था। पंजाब का उसके अंदर नुकसान जो है तकरीबन 1.5 अरब डॉलर के करीब है, लेकिन अब पंजाब आपको अरबों डॉलर से ज़्यादा अपना नुकसान करता हुआ नज़र आया है, क्योंकि सैलाब ने इसको घेरे में लिया हुआ है। अगर आप फसलों की बात करें तो जो असेसमेंट्स हैं उनके मुताबिक 60% चावल की फसल तबाह हो गई है, 35% कपास तबाह हो गई है, गन्ने की फसल ज़ाया हो गई है। और ये भी आपको बता दें कि अगला सीज़न गंदम का है। पंजाब 70% मुल्क की गंदम प्रोड्यूस करता है और ये गंदम की मंडी है, ये गंदम की बैकबोन है। गंदम अगर नहीं लगेगी, जो कि नहीं लग सकती, जो हालात आपके सामने हैं, तो फिर इस मुल्क का क्या होगा? फूड प्राइसेस कहाँ पर जाएंगी? IMF के साथ कैसे नेगोशिएशंस होंगे? हमारे टारगेट्स कहाँ पे जाएंगे? और जो मुल्क को रिवाइव करना है मुआशी तौर पर, उसका क्या बनेगा? तो सिर्फ किसी चक अब्दुल्ला की या गांव अब्दुल्ला की बात मैं नहीं कर रहा, मैं एक मुल्की बहरान की बात कर रहा हूँ। जब आप सवात की पहाड़ियों में जाते हैं तो फिर वहाँ के लोग आपको रिमाइंड करवाते हैं, वो कहते हैं जी कि मीडिया फॉलो करता है जहाँ पर फ्लड जाता है। वो हमसे शिकायत करते हैं कि हम फ्लड से अभी बचे नहीं हैं, हमारे घरों के सामने पहाड़ नुमा पत्थर मौजूद है। और हम जब वहाँ पर गए तो उन पत्थरों को देखकर एक अजीब किस्म की हैबत तारी हो जाती है। लोग अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो सवात की पहाड़ियों से लेकर पंजाब के मैदानों तक और आगे पानी ने जाना सिंध की तरफ, हम आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों की आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। लोग तखमीने कैसे लगा रहे हैं, किसका क्या नुकसान हुआ? आइए चलते हैं इस गाँव में जो सैलाब के रेलों में मुतासरा तरीन गाँव में से एक था और जहाँ पर गिरदो नवाह के अंदर बुलंद तरीन जनाब के रेले गुजरे। वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी तवक्कुआत क्या हैं और उनका दुख दर्द क्या है? जब आप आबादियों के अंदर आते हैं तो आपको पता चलता है कि उन आबादियों के साथ जुड़े हुए जो फार्म्स हैं उनका क्या हाल हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ से पानी गुजर रहा है उसकी दवाई अपनी है, जहाँ पर वो पहुँच रहा है उसके मसाइल अपने हैं। जहाँ से पानी गुजरा और थोड़ा थोड़ा निकला वहाँ पर तबाही के असरात आपको नज़र आएंगे, और जब पानी निकल जाएगा तो आपको पाकिस्तान के अंदर यही तस्वीर नज़र आएंगी। अब हमारे साथ जो दोस्त मौजूद हैं, यहाँ के मुकामी ज़िम्मेदार हैं, दरमियाने दर्जे के ज़िम्मेदार हैं, ज़िम्मेदार के साथ उनका घर बार ठीक चलता है। चलते चलते इन्होंने कुछ हमें बातें बताई, उसका मैं पहले आपको हाल सुना देता हूँ कि जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो हमसे क्या बात कर रहे थे। अब आप देख सकते हो, ना कैमरा मार लो, ये मुंजी असा किसान कार्ड मरियम साहब सन दिता किसान कार्ड, उन्होंने तो करदा लैके ते मुंजी लाई है। तकरीबन खर्चा सारा जिम्मेदार है, सारे ही किता वेखो जी डाल मुंजी लाया पे तोड़ जा कैमरा मार के देख लो। ठीक है, कोई जिम्मेदार कोई मैं जेड़ा भी है सारे तबाह होया पे, किसी को पट्ठा नहीं, किसी को मने दाने मने रोड़ गए। साड़ी एक ही कितना रकबा है तुसा ना? मेरे को रकबा है, मेरे 3 बेटे न, 3 बेटे ना 11-12 किले बोए हैं, 36 किले मेरे को रकबा है, झूठ नहीं बोलना। ठीक है, असी सारा चावल बनाया हुआ तो उन्होंने बच्चों ने मैंने किसान कार्ड बनया, यकीन करके मान लो कोई 8 को 10 लाख रुपया यार वो कार्डा तो मेरे जे भी कार्ड को मार के देख लो किसान गवर्नमेंट खाते कर्जा लैके सब मुंजी लाई है तो देख लो जी हाल होया पे अब वेख लांदे मुंजी दोबारा तो नहीं लग सकती, मौसम नहीं रहा, मौसम गुजर के अगली फसल केड़ी लांदे हो? अगे फसल है सामने कणक की गिरनी है, कणक लासो वो भी इतना पै गया किसा लासो ये तो फिर निकल सी ते लासो जी पानी जाएगा तो कणक लगेगी जी, पानी नहीं लाए ते कणक भी कैसे गड्ढा मगरा करदा ही लेना लैक मुन रोड केड़ी साडे को है अगला करदा तो साडे को किवें लेना जिवें सानू माफ कर दे या पंजाब हुकूमत या साडे को रहिंदी है वेले ओ ले जानदा साडी एक ही अपील है मरियम साहब के भी बहुत वालदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म आला जदों आए उस हेलीकॉप्टर साडे को आया साडे डेरे ते बंदे हेलीकॉप्टर लै गया है असीं उन्हां बंदे दा देने ये चंगा कीता खुद हेलीकॉप्टर ते हैदराबाद बंदे ले जांदे है। मरियम साहब की साडी एक ही अपील है, मरियम साहब मेहरबानी कर कोई प्योर दा दिल वेख के साडी इमदाद कर। अब ये हमारे पास ऐसी जगह पर मौजूद है कि जिससे आगे ये उन ज़मीनों के ऊपर जिनके अंदर इन्होंने अपने हाथ के साथ बीज बोया, अपने हाथ के साथ फसल उगाई और नस्लों से उगा रहे हैं, वहाँ तक ये पहुँच नहीं पा सकते हैं क्योंकि ये तमाम का तमाम पानी जो है अभी भी चल रहा है। अब चलते पानी की आपको तस्वीर नज़र आएगी, पानी बज़ाहिर आपको ठहरा हुआ नज़र आता है लेकिन पानी चल रहा है, जिसमें मराजे का पानी अभी मज़ीद आ रहा है। पानी कब तक निकलेगा, इसके बाद के हालात क्या बनेंगे, इन सब से हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी।
तुसां दा केह् नाम है जी? रज़ाक साहब। ते एह् दस्सो कि तुहाडी किन्नी ज़मीन सी? इत्थे जी 5 किल्ले ज़मीन सारी मुंडी है, सारी गर्क हो गई। अच्छा, अगर सारी तबाह हो गई है, हुण किस जोगी नहीं रही? वेखो सारी डुब्बी पई है सारी। अच्छा, ये हुण तुसीं दस्सो कि तुहाडा कोई नुकसान दा के अपना हर शे डट्ठे में जाते पे नहीं, उसकी तो कीमत दिलानी पे, तुहाडे कोल कोई आवे ते पुछे तुहाडे कोल कि जी ये कितना तुहाडा नुकसान है, तो के दस्सो उसकी कि कितना नकद कितना नुकसान है? ये मैं जब तुहाडे को पूछ रहे हैं 5 लाख 10 लाख का केड़ा खर्चा है? 5-6 लाख दा है ही जान, सिर्फ खड़ी फसल दा 5-6 लाख। नाल जेड़ा होर सामान तबाह होया है, जेड़ा बिल्डिंगां कच्चियां उस तो इलावा है डेरे दा जेड़ा नुकसान है, डेरे दा अलग है, मशीनां दा नुकसान अलग है। ये मिला के कोई नुकसान तुसा कोई अपना तैयार किया? आप में से किसी ने किया? तुसा कोई किया अपना नुकसान? कितना बना? आपका 14 लाख रुपया खर्चा होया, जो मकान गिरे पड़े हैं, जो फर्श पे बैठे हैं ना, जो इस वजह से जितना भी हुआ जाती 14 लाख जी, 14 लाख जेड़ा फसल और मकान बना के। जी जी, ठीक है। थोड़ा भी नुकसान है जी? कितना नुकसान है? तारक महमूद नाम है मेरा। मेरी 5 किले फसल खराब हो गई, मकान है ਤੁਹਾਡੇ सामने है, पहला मकान मेरे ही है, सारा खराब हो गया। कोई पारू बकरियां सन वो भी डुब गई, मर गई। बाकी कम अज कम घरेलू ते फसल का रला के मेरा 15-16 लाख का नुकसान है। आपका? जी, मेरा भी डेरा जो है ना वो सफास्ती से मिट गया है। तकरीबन 17-18 एकड़ मेरी धान की फसल थी, वो भी तबाह हो गया। तकरीबन 25 से 30 लाख रुपया मेरा नुकसान बनता है। आप ये कहते हैं कि सफा हस्ती से मिट गया है, इससे मुराद जरा बताने के लिए? बिल्कुल खत्म हो गया है। वो कमरे शमरे जो बनाए हुए थे ना डेरे के लिए, जी दीवारें जमीन के ऊपर आ गई। जी जमीन के ऊपर आ गई, खड़ी नहीं। ठीक। और वहाँ पे क्या था? आपका डेरा था, आपका घर था, क्या था वहाँ पे? मेरा डेरा था भैंसों के लिए, भैंसें निकाल ली थी, बाकी डेरा मिट गया है। मोटर वगैरह प्लेटें वगैरह वो स्लाब ले गया उधर से। ठीक है। बाकी फसल बिल्कुल तबाह हो गई है, एक दाना भी नहीं बचा उधर। ये अगली फसल भी गई? गंदम भी गई। अच्छा, गंदम की फसल लगाते सो तो ओदी मालियत की कीमत की होंदी सी अमूमी तौर पे? एक फसल का तुसी दस देता वो कितनी? 1 एकड़ दी 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट होंदी। ठीक, मतलब औसत आ जांदी है 50-60 हज़ार खर्चा 50। ते तानू अपने सीजन दे विच जेड़ा ना जदों तुसी गंदम लांदे सो ओदी मालियत कुल्ली तौर ते कितनी होंदी सी? ये फसल ते जाया हो गई, ये तुसी दस देता। जी जी। गंदम दी फसल जेड़ा अगली सी ओ तकरीबन जिस बंदे दी 1 एकड़ गंदम है ना, उन तकरीबन 50 तो 70 हज़ार रुपया मुनाफा आ जांदा सी। ठीक है। खर्चा कट के। ठीक है। जी जी, खर्चा ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਖ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है। 50,000 रुपया 1.5 लाख तक ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੌਕੇ ਜਾ ਵੇਖਣ ਮੈਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਿਆ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਸੋਲਰ ਲਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਲੈ ਕੇ। ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸੋਲਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਹ 6 ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ 10 ਕਿਸ਼ਤ ਮੈਂ ਅੱਛਾ 5 ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਚਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ? ਬੱਚੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਰਾ। ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 5 ਕਿਲੋ ਕਿਸ਼ਤ 1,75,000 ਕਿਸ਼ਤ 5 ਮਤਾ 5 ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। 8 ਰਾਣੀਆਂ 5 ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। जनाब साड़ी भी मुंडी आई 5-6 किले, मेरी भी आ, मेरा भाई ये भी रोड गई है ते वो सारा पीटर ही चलते हैं, तेल साड़िया सारा कर्जा उंजे मुंडी सुंडी मकान भी हर शा डिग गई है। ठीक है जी, कर्जा शर्जा उंजे ही हर शा उधार ही लैके काम किया है। ये फसल रोड़ी अगली फसल ला नहीं सकते हो जी? अगली करोगे की ਅੱਲਾ ਜੇ ਸਾਥੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੀ ਵਾਰਸ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਦਬੀਰ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੇ 2-2 4-4 ਜਾਨਵਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ 2-2 4-4 ਜਾਨਵਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਦੇ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਾਂਦੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, सानों का मुआवजा दिता जाए जेडे साडे नुकसान होए ने। अब मामला सिर्फ ये नहीं है कितना नुकसान हुआ, किस नुकसान को किस तरीके से पूरा करना है, अगली फसल कहाँ पर लगेगी, कैसे लगेगी, लगेगी भी या नहीं लगेगी, इसके साथ दूसरे मामलात भी घूम रहे हैं कि ये हुआ क्यों। एक वजाहत जो मुकामी तौर पर हमें सुनने को मिल रही है कि इस इलाके के इर्द गिर्द, इस बिलखसूस इलाके के जहाँ पर हम खड़े हैं उसके इर्द गिर्द बंद ना होना तबाही की बुनियाद बनी। ना क्या तो संजय जी? मोहम्मद आरिफ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ NGP ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨੇ, ਸਾਡੇ 14-15 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕਦੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਪੀਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੰਦ ਬਣਾਓ? ਜੀ ਅਸੀਂ MP MN ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਵਾਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਕੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦ ਬਣ ਸੀ? ਜੀ। ਔਰ ਸ਼ੁਨੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ? ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੁਣਨੇ ਪਏ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰ ਬੰਦ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ? ਜੀ ਬੰਦ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ। 12-14 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ MP MN ਅੱਗੇ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਅਪੀਲ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੈ ਜੀ? ਬੰਦ वास्ते 15 किलोमीटर का फासला है, 14-15 पिंड बच जाते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आती कि जब पानी निकल भी जाता है तो सिर्फ जहाँ पर खड़ा रहता है वो तबाही नहीं करता, दरिया ज़मीन खा जाता है। आप समझते हैं कि पानी निकलेगा तो ज़मीन वहाँ पर मौजूद होगी, लेकिन इस इलाके के लोगों ने देखा है कि उन्होंने बतदरीज दरिया की ज़मीनों से अपने आप को हटते हुए देखा। किसी ज़माने में बताया जाता है कि दरिया का वो इलाका जहाँ पर पानी नहीं था, वहाँ पर जंगलात थे, इनकी फसलें थी, वहाँ से फिर पानी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुआ, उन लोगों ने वहाँ से अपना दामन बचाया और फिर इस जगह पर आकर आबाद हो गए। अब ज़मीन से पानी निकालने का मसला नहीं है, ज़मीन का ना होना मसला है। आप अपना नाम बताइएगा। चमरे साहब, ये जो अभी हम गांव वालों से बात कर रहे थे वो कह रहे थे जी कि हमारी ज़मीनें खा गए। ये दरिया कैसे खा जाता है ज़मीन? क्योंकि आम ख्याल तो ये कि पानी आया, पानी सूख जाएगा, निकल जाएगा 6 महीने के अंदर तो मामला ठीक हो जाएगा। ये ज़मीन खाना क्या होता है? तलत भाई, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सम्मा TV का और आपका, जो अभी भी इतने पानी होने के बावजूद हमारे चक अब्दुल्ला में गाँव में सबसे पहले सम्मा TV है जो हमारे गाँव में तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया सर। दूसरी बात सर, पानी 2014 में जब पानी सबसे ज़्यादा उस टाइम आया था 2014 में, तो ये जितने लोग खड़े हैं ये सब के इनके घर, डेरे, माल मवेशी सारा उधर दरिया के ऊपर था। तो उस सैलाब के दौरान सब की जो 40-30 एकड़ 25 एकड़ 20 एकड़ ज़मीन थी वो सारी दरिया में बह गई। जो फ़ी एकड़ का रेट 50 लाख प्लस में 1 एकड़ था, जो इन लोगों की 15 से 20-25 एकड़ फ़ी एक घर की थी वो सारी दरिया में बह गई। जब पानी ज़्यादा आता था तो पानी ऐसे छल्ले में लगाता है तो पानी जो वो ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता सारी अंदर कर ले जाता है, जिसमें हमने देखा होगा घूमता भी है पानी और फिर वो कटाव करता है, ज़मीन को खाता, अंदर से वो कटाव करता रहता है। तो इन सब लोगों के घर एक ईंट तक ये उधर से नहीं लेके आए। अब उधर से ये इस गाँव में आ गया हमारे में, तो इधर आके भी पानी ने, इस दरिया ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। पीछे बाद में सुनने में आया था कि ये बंद जो है गुजरात से लेके कादराबाद तक मंजूर हो गया है, पेपर्स के ऊपर मौजूद है कि हो गया है, लेकिन वैसे हमें नजर नहीं आया कि इधर बना है। जी नहीं बना। आपका भी ये ख्याल है कि पेपर के ऊपर मौजूद है? मौजूद है, चलो हम चेक कर लेंगे। और हमारा मकसद ये नहीं है कि कादराबाद का बंद तोड़ा जाए। जब पानी ज्यादा फिर तोड़ भी दें तो पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, इशू नहीं है। अगर मकसद ये नहीं है कि तोड़ा जाए, इस तरह की कोई सिस्टम हो, ये बंद बन जाए। जमीन के ऊपर है ना, और ये 11 से जमीन के कटाव का मुझे बताएं कि अब आप यहाँ पर आ गए हैं, अब पानी यहाँ पे खड़ा है, लोग कहते हैं जी ठीक है वक्त नुकसान हो गया, सबका हुआ, ये पानी निकल जाएगा। ये मुझे बता रहे थे कि अब वो जमीन खा गया है, वो दरिया खा गया, दरिया के अंदर मतलब क्या? वो हर घर की 15 से 20 एकड़ है, 280 घर हैं हमारे गांव के, सब की जमीन उधर सी, और एक भी ऐसा घर नहीं है जिस घर की 10 एकड़ से कम जमीन हो। तो अब जब पानी निकलेगा तो ये जमीन सुकड़ गई होगी? हाँ जी, उसमें रेत अब होगी, वो उगाने के काबिल नहीं है इस टाइम जमीन, वो ज़ाया हो गया। क्योंकि मैं यही पूछने वाला था कि अगर पानी वहाँ से निकलता है तो वहाँ नहीं, वो कहते हैं जी कि बड़ी जमीन आ जाती है, दरिया और चौड़ा हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, वो दरिया वो अब इस्तेमाल वाली ज़मीन नहीं रही। तो अब आपका खदशा ये है कि जहाँ पर दरिया ने अपनी लकीर खींच दी है उस तक ही हमेशा आया करेगा? जी उसी तक ही आएगा, उससे भी आगे ही बढ़ेगा कि इन लोगों की अभी भी 5-5-6 जो थोड़ी थोड़ी रह गई है, अभी भी सुनने में आ रहा है दरिया के ऊपर हम गए नहीं है, पानी है, तो वो भी जो बकाया रह गई थी वो भी गिर गई। अब लोग ये बिल्कुल भैंसों के चारा भी वो नहीं उगा सकते, इतनी भी वो ज़मीन उधर नहीं रह गई। तो उससे पहले जब मैं बात कर रहा था तो वो लोग एस्टिमेट अपना दे रहे थे, आप भी उसके अंदर मौजूद थे, तो इस शुमार के अंदर जो उन्होंने मुझे दिया
इसके अंदर जो ज़मीन ज़ाया हुई है वो तो नहीं है कि ज़मीन जो ज़ाया हुई हो गई होगी, जो दरिया खा गया होगा, वो शुमार के अंदर है कि नुकसान कितना हुआ, या शुमार सिर्फ फसल क्या है जो डेरा बना था उसकी तबाही? जमीन भी अलग, वो भी गिरी है, फसल की अलग नुकसान जो शुमार में ये आप लोग डालते हैं जब आप शुमार करते हैं जी कि हमारी जमीन भी गई, तो आप नहीं, वो अलग, वो नहीं डालते, वो अलग है, ठीक है, वो चीज़ अलग है। वो भी अभी लोग जाएंगे, अभी तो पानी है सारा, वो देखेंगे हमारी जो जमीन उधर भी फसल थी, लेकिन वो जमीन भी दरिया में गिरी। जमीन की कीमत क्या है वैसे अमूमी तौर पर? वो भी इस टाइम 60 से 65 लाख है वह 1 एकड़, जो लोगों की अभी भी गिर गई है। 2014 में भी गिरी थी। रही जो भैंसों के चारे के लिए ज़मीन थी थोड़ी बहुत थी, वो भी गिर गई। अब बिल्कुल जो है वो भैंसों के चारे के लिए भी ज़मीन उधर नहीं रही हमारे गांव के लोगों की, वो भी दरिया खा गया। ये तो फसलों के तखमीने हैं। इस जगह पर आप आएँ तो यहाँ पर आपको फ़िश पॉन्ड्स मिलेंगे। ये बहुत बड़ा मरकज़ है पंजाब के अंदर फ़िश पॉन्ड्स का। अभी तक जो तखमीना लगाया है अमूमी तौर पर 1 अरब तक का नुकसान हो चुका है यहाँ पर। जिन्होंने फ़िश पॉन्ड्स के ज़रिए अपनी ज़िंदगियों का निज़ाम बनाया था वो किस तरीके से मुतासर हुए, आइए देखते हैं। तकरीबन 3000 एकड़ जो है ना ये फ़िश फार्म है, और हमारी मछली तैयार थी, सारी इन्वेस्टमेंट हम कर चुके थे, और सारा हमने कर्ज उठा के ये सारा फ़िश फार्म जो है ना इसको पाल पोस के बड़ा किया है, और हमारे सारे फ़िश फार्म बह गए हैं, और हमारा तकरीबन 1 अरब का नुकसान है, जो हमारे लिए हमें ना रात को नींद आती है ना दिन को आती है। हम बहुत परेशान हैं। हमारी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब से कि हमारी जो भी है इन्वेस्टमेंट हमने की हुई है, जो हमने खर्चे किए हुए हैं, हमारी फीड है, हमारी खाद है, सारी हमने इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। हमारी मछली तैयार थी, सारी दरिया में बह गई। ऐ साडे फिश फार्म जेडे ना जनाब तबाह हो गए ने, लोग साडियां मछलियां जाल ला के पकड़ रहे ने, ते लिहाजा साडी गवर्नमेंट से अपील है कि साडे बिल ते माफ कीते जान, कर्जे साडे माफ कीते जान। साडी उत्ते 500-600 किला मंजी है, सुपर मंजी बड़िया वक्तां नाल लाइन सोलर ते मोटरां कमाद उतो कट ना कर साडी हर शहर दी सीधी ना कट दे मुंह अगे 500-600 किला मंजी साडी सुपर उत्ते जमीन दा भी नहीं पता, वो गमोर ही नहीं। नंबर्स बड़े अहम हैं। आपको नंबर्स के ज़रिए बताना है कि सैलाब का वॉल्यूम क्या था, कितने लोग मुतासर हुए, कौन सा इलाका है और नुकसानात क्या हैं। तखमीने लगते रहेंगे। दीवान आदिल साहब समा के नुमाइंदे हैं और इस फ्लड को बड़े जुस्तजू के साथ और बड़ी मुस्तैदी के साथ और बड़ी कमिटमेंट के साथ उन्होंने कवर किया। बहुत शुक्रिया जी आपका। ज़रा नंबर्स की बात करें, कितने लोग मुतासर हुए हैं उस इहाते के अंदर जिसके अंदर आप ऑपरेट करें? सर, मंडी बहाउद्दीन में जब पहला फ्लड का रेला आया 10,71,000 का, वो तारीखी रेला था। इससे ये सुपर फ्लड कहलाता है क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा फ्लड नहीं आया था। 2014 में भी मैंने ही समा टीवी के प्लेटफॉर्म से इसको कवर किया था, तब यहाँ पे 9 लाख क्यूसी का रेला था। इस सुपर फ्लड से तलत साहब हुआ ये कि तकरीबन 1 लाख के करीब जो हैं ज़िले इंतज़ामिया के आदाद शुमार के मुताबिक जो हैं वो लोग बराह रास्त मुतासर हुए। सर 90 से ज़ायद देहात थे जो बुरी तरह मुतासर हुए। इससे ये अलावा सर कि 77,000 एकड़ के ऊपर जो फसलें थी यहाँ पे बेसिक फसल होती है सर कमाद, धान और उसके अलावा चारा की, ये फसलें जो है वो बुरी तरह मुतासर हुई। सूरत हाल उस वक्त ये थी कि यहाँ जिस देहात में हम खड़े हुए हैं चक अब्दुल्ला में, यहाँ पे तो रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ ही नहीं हो सका था क्योंकि रेस्क्यू की सिर्फ 22 बोट्स थी और वो मुतासरीन की तादाद थी 90 से ज़ायद देहात थे और 22 बोट्स थी हमारे पास यहाँ पे कवर करने के लिए। अमूमी तौर पर एक देश के अंदर कितने लोग होते हैं अमूमी तौर के ऊपर अगर बात कर ली जाए तो 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 तक भी लोग जो हैं वो उनकी लोग होते हैं यहाँ पे। 90 देहात जो थे वो इससे बराह रास्त सर मुतासर हुए थे। 77,000 एकड़ के ऊपर जो फसलें थी वो बुरी तरह मुतासर हुई हैं। फसलों की सूरत हाल अभी भी आपके सामने है, यहाँ पे पानी में डूबी हुई हैं, लोगों की अमलाक बह गई हैं। तला साहब, इस सैलाबी रेले के अंदर जो 2 सैलाबी रेले आए, इसके बाद 1 हफ्ते के बाद अभी ये पानी कम नहीं हुआ था कि 5,44,000 का फिर रेला आ गया। उससे फिर सेम यही जो है ब्लॉक
ब्लॉक जो है वो मुतासर हुआ जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। यही देहात थे, वो 50 से ज़ायद देहात थे, दूसरे रेले में मुतासर हुए लोगों की सिर्फ 5 लोग इसके अंदर जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। इस तहसील फालिया के 2 नौजवान थे जिनमें 2 और थे, बुजुर्ग थे। ऐसे ही एक जो है वो ड्राउनिंग केस अभी भी चल रहा है, उसकी डेड बॉडी रिकवर नहीं की जा सकी। 5 लोग जो हैं वो डेथ हुई है 5 लोगों की। और इसके अलावा यहाँ पे चारे का बड़ा इशू बन गया था सर। जब फ्लड चल रहा था तो लोग को अपने तो और अपने बच्चों के तो दूध और खाने का इशू था ही था, लेकिन यहाँ पे देख रहे थे क्योंकि किसान का दारोमदार जो है वो फसल या उसके जानवर पे होता है, तो जानवरों के चारे का बड़ा इशू बन गया था क्योंकि फसलें सारी की सारी यहाँ पे तबाह हो चुकी थी। मैदानों में जाएं, दरियाओं के किनारों में जाएं या वहाँ पर जाएं जहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ था। हम आपको सवात की पहाड़ियों में लिए चलते हैं जहाँ पर हमने वो मनाज़र देखे कि दिल दहल गया। यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ 3 हफ्ते पहले, यहाँ से तोदा गिरा, बारिश आई और अब वहाँ के लोगों के मसाइल आप देखिए। जब हमने वहाँ के हालात देखे तो पता चला कि ये लोग इस धचके से, इस सैलाब से, इस क्लाउड बर्स्ट से शायद अगले 10 साल भी रिकवर ना कर पाएँ। जवामर्द लोग हैं, ख़वातीन साथ इनके खड़ी हैं, लेकिन जो नुकसान हो गया वो नाकाबिले तलाफ़ी है। आपको घर टूटे हुए नज़र आएंगे, आपको पत्थर हर तरफ बिखरे हुए नज़र आएंगे। और ये पत्थर नहीं हैं, ये छोटे पहाड़ हैं। मशीनरी का पहुंचना यहाँ पर बहुत मुश्किल है। लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो अपने प्यारों का, अपने नुकसान का गम करें, तखमीने लगाएं या अपने ज़िंदगी के निज़ाम को बहाल करने की कोशिश करें। जो लोग हैं अभी भी अपने गम की दास्तानें सुनाते हैं। जब उनसे बात करते हैं तो वो अपने गम के अंदर डूबे हुए हैं, घरों को भी साफ़ कर रहे हैं, पत्थर भी हटा रहे हैं और ये भी याद कर रहे हैं कि उनके साथ हुआ क्या। मेरा पूरा घर गया है और उसमें मेरा बाबा था, मम्मा था और 4 बहनें थे, एक मेहमान था, एक भाई था। तो मम्मा और बाबा बाहर आ गए थे और 4 बहनें वो अंदर थे, तो डेथ हो गए, शहीद हो गए हैं। वही पदे तंदर किस्ता सुना नो 2 कमरे में वर दिया 5 कनाल टीवी ता पूरा 5 कनाल अजमा का 2 कमरे को 5 कनाल अजमा का फसल पे। इसका ये कह रहा है कि हमारा घर लेके गया 2 कमरे का और हमारा ज़मीन लेके गया वो फसल वाली ज़मीन जिस पे मक्के और ये फसल था। हादसे से पहले मैं अपने कमरे में था, मोबाइल देख रहा था और मेरी माँ घर से बाहर थी। तो फिर ज़लज़ला आया तो मैं कमरे से आया और मेरी माँ बाहर से घर में आई। तो मेरी माँ ने कहा ज़लज़ला नहीं है, मैंने कहा ज़लज़ला है। तो फिर मेरी माँ ने मुझे पकड़ लिया और हमको माल बहने लिया। फिर हमारे घर में एक गेट है, वह मेरी माँ इतनी डूबी हुई थी और मैं खुद निकला हुआ। फिर मेरी भाई और मेरा बाप, मेरा चाचू आया और मेरी माँ को आज़ाद किया। उस दिन तो मतलब ये जो 5 लोग था, मेरा ख्याल में 5 वो मिला और 2 का लाश जो है दूसरा दिन पे मिला और जो एक बच्ची थी उसका लाश तकरीबन 3 दिन बाद मिला। मैं घर में तो मतलब फैमिली नहीं था, मैंने बनाया बस रेडी किया था और घर का जो था तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख के आसपास जो था मतलब मैंने स्पेंड खर्चा किया इसमें। ये जो नीचे एरिया जो आप देख रहे हैं ना, ये जो मतलब अभी खाली पड़ा है, इसमें 3 घर था। एक बहुत बड़ा घर था, उसके बाद एक केटल का घर था और एक उनका जो ज़मींदार रहता था उसके साथ एक उनका घर था। फिर आगे नीचे जो है एक गवर्नमेंट स्कूल है वो भी ख़राब हुआ और इसके बाद एक और घर भी था वो भी तबाह हो गया, मतलब वो भी पूरा ख़राब हो गया था। तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 घर इधर मतलब इस एरिया में तबाह हुआ। जब हमको इतला हुई तो हमने सारी मसाजिद में ऐलानात किए कि यख्तंगी में ये खौफनाक हादसा हुआ है और सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए यहाँ आए इमदाद के लिए। और उस वक्त सिग्नल और नेटवर्क, मोबाइल का नेटवर्क जो था बिल्कुल मुनक़ता था, वो काम नहीं कर रहा था। तो बाद में जब मोबाइल सिग्नल काम शुरू हुआ, मोबाइल सिग्नल का काम शुरू हुआ तो फिर हमने सारे महकमों को इतला दी और वासा वालों को, टेमे वालों को, जो भी जितने भी महकमे थे और जो भी हमारे आला हुकाम थे, MPs थे, MNS थे, जो AC थे, DC, सबको हमने इतला दी। हम ये ख्वाहिश करते हैं हुकूमत से और सारे बड़ों से और सारे इदारों से कि इस इलाके में आ जाए और इसमें जो हमारी मुश्किलातों में
थोड़ा हमारे साथ दे और इस इलाके के ये गरीब लोगों के साथ थोड़ा रहम करे, क्योंकि हमारे इस इलाके के फ्लड की वजह से हमारे रोडें, हमारे रास्ते जो कनेक्ट पुलें थी वो भी सारे लेके गए, पानी का निज़ाम भी सारा ख़त्म हो गया है। हम वहाँ भी ख्वाहिश करते हैं अपने बड़े हुकूमत से और सारे इदारों से कि आए और हमारे साथ इस जगह पे थोड़ा मदद करे। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा, एक झलक हमने आपको दिखाई कि पाकिस्तान के अंदर सैलाब ने और बारिशों ने क्या तबाही मचाई है। बहुत आसान है तस्वीरें खिंचवाना, बहुत आसान है लोगों से वादे करना, बहुत आसान है ये बताना कि हम आपके सर के ऊपर हाथ रखेंगे। आसान इस वजह से है कि सियासी तौर पर तस्वीरों के ज़रिए, कैमरास के ज़रिए, टीवी के ज़रिए ये मामला तय हो जाते हैं, लेकिन जब आप तखमीने लगाने पर आते हैं तो आपको अंदाज़ा लगाना मुहाल है कि हर एक फ़र्द का नुकसान कितना हुआ है। और जब आप ये तखमीने लगाने बैठेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान से लेकर अंदरून सिंध तक अरबों डॉलर के तखमीने लगेंगे। अरबों डॉलर कहाँ से आएंगे, कौन हमें फ़ंड करेगा। पिछले मरतबा जो सैलाबों के अंदर मुख्तलिफ बैंक्स ने हमें कर्ज़े दिए, उन कर्ज़ों के लिए हम प्रोजेक्ट तक नहीं बना पाए। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि लोगों की तवक्कुआत, लोगों का गम, लोगों का गुस्सा, लोगों का नुकसान हमारी सोच से भी आगे की बात है। अगर हमने सही तखमीने नहीं लगाए और महज तस्वीरों के ऊपर और कैमरास के ऊपर गुजारा किया और खाली खूली नारे लगाते रहे तो अगली मरतबा जितना सैलाब बिखरा था उससे ज़्यादा लोग बिखरे हुए होंगे। और सैलाब से तो बचत हो सकती है लेकिन अवाम के गुस्से से बचत नहीं हो सकती। तलत हुसैन को इजाज़त दीजिए। चक अब्दुल्ला, मंडी बहाउद्दीन से, अल्लाह हाफिज़। मरकजी पंजाब में चनाब के बिल्कुल बराबर अंदरून में सफ़र करते हुए ये बारिश का समा आप देख सकते हैं और ये बारिशें के ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अगर इस्लामाबाद या किसी और इलाके में बारिशें हो तो इनको क्लाउड बर्स्ट का नाम दिया जाता है। यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट है, जो बारिश का क्वांटम बहुत ज़्यादा है। दरिया ऑलरेडी बिखरे हुए हैं और जिन इलाकों में से हम गुजर के आए हैं उन इलाकों के मकीनों का मैं सोचता हूँ तो उनके तमाम खदशात मुझे पूरे होते हुए नजर आते हैं कि सैलाब का अजाब एक है और जो आसमान ऊपर से इम्तिहान ले रहा है वो ना ख़त्म होने वाला है।